میک اپ میں ڈوبا ہوا رہتا ہے، عورت ہو چاہے مرد ہو۔ اور حد تو یہ ہے کہ آج کل کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی بغیر لپسٹک کے کہیں جانا پسند نہیں کرتے۔ حالانکہ اسلام میں عورتوں کو خوشبو تک لگانے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو عورت خوشبو لگاتی ہے اور خوشبو لگانے کے بعد اس خوشبو کی مہک اگر کسی مرد کے ناک میں پڑتی ہے اور وہ مرد اس عورت کی طرف مائل ہوتا ہے یا اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو قیامت کے دن وہ عورت زانیہ عورت کی حیثیت سے اٹھائی جائے گی۔ حالانکہ اس نے زنا کیا نہیں، لیکن اس نے جو خوشبو لگائی، اس کی خوشبو کی مہک کی وجہ سے مرد اس کی طرف مائل ہوا، اور اس مائل ہونے کی وجہ سے اس عورت کو زانیہ کی حیثیت سے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ اسلام میں خوشبو لگانے کی جو اجازت عورتوں کو دی گئی ہے تو وہ مخصوص قسم کی خوشبو ہے، جس خوشبو کا رنگ گہرا ہو اور اس خوشبو کی جو مہک ہے وہ ہلکی ہو، تاکہ دور سے وہ سونگھنے میں نہ آئے۔ کسی مرد کے پاس سے یا کسی عورت کے پاس سے اگر خوشبو لگا کر کوئی عورت گزرے تو دوسرا شخص یہ جان نہ پائے کہ اس عورت نے خوشبو لگائی ہے۔ لیکن آج کل جو خوشبو لگانے کا ماحول ہے، خوشبو تو دور کی بات، عطر تو دور کی بات، آج کل تو پرفیوم پہ پرفیوم لگائے جا رہے ہیں۔ عورتیں پرفیوم لگا کر ادھر سے ادھر گھومتی ہیں، بازاروں میں جاتی ہیں، اور اتنا ہی نہیں بلکہ ولیمے میں جاتی ہیں، شادیوں میں جاتی ہیں، پارٹیوں میں جاتی ہیں، ہر طرح کی ہر جگہ جہاں عورت کو جانا منع کیا گیا ہے ہر اس جگہ جاتی ہیں اور بن سور کر جاتی ہیں، میک اپ لگا کر جاتی ہیں، خوشبو لگا کر جاتی ہیں، اترا کر چلتی ہیں، مردوں کو اپنی طرف لبھاتی ہیں، اپنی طرف مائل کرتی ہیں۔ اور انہی عورتوں کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسی عورت قیامت کے دن زانیہ کی حیثیت سے اٹھائی جائے گی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک عورت خوشبو لگا کر ان کے پاس سے گزری۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی خوشبو کی مہک جب سونگی تو اس کی طرف پلٹے اور اس سے بڑے ہی غصے میں کہا کہ اگر آج کے بعد تجھے اس حالت میں دیکھ لیا تو پھر تجھے حد لگائی جائے گی، اور اس عورت سے مخاطب ہوئے اور اتنے غصے میں اس عورت کو یہ تلقین کی کہ عورتوں کو خوشبو لگانا منع ہے، اور اگر عورت خوشبو لگائے بھی تو ایسی خوشبو لگائے کہ جس کی مہک ہلکی ہو اور جس کا رنگ گہرا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر خوشبو سے بچا کرتے تھے، عورتوں سے اس قدر بچا کرتے تھے کہ ایک عورت خوشبو لگا کر مسجد میں جا رہی تھی۔ ذرا غور کریے کہ وہ بازار نہیں جا رہی تھی، وہ محفلوں میں نہیں جا رہی تھی، وہ بن سور کر شادی اور ولیمے میں نہیں جا رہی تھی، وہ تو مسجد میں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے جا رہی تھی۔ لیکن جب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر ملتی ہے کہ فلاں عورت خوشبو لگا کر مسجد میں جا رہی ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ اس عورت کو روک دیا جائے اور اسے کہا جائے کہ وہ اپنی خوشبو کو اپنے سے جدا کرے اور اپنا لباس تبدیل کر کے بغیر خوشبو والی حالت میں مسجد آئے، کیونکہ وہ خوشبو لگا کر اگر مسجد میں جائے گی تو لوگوں کا دھیان اس کی طرف جائے گا، لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں گے، جس کی وجہ سے وہ گنہگار ہوگی۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت خوشبو لگا کر باہر نکلتی ہے اور اس کی خوشبو کسی مرد کے ناک تک پہنچتی ہے تو اس عورت کو قیامت کے دن زانیہ کی حیثیت سے اٹھایا جائے گا۔ آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتی ہوں، جتنی بھی خواتین جو میک اپ لگاتی ہیں، میک اپ کرتی ہیں، کیا آپ لوگوں کو میک اپ کے سائیڈ ایفیکٹ نہیں نظر آتے؟ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ کا چہرہ خراب ہو جاتا ہے، آپ کا چہرہ برباد ہو جاتا ہے اور بغیر میک اپ کے آپ ایک پل بھی نہیں رہ سکتی۔ لیکن ذرا غور کریے کہ جو عورتیں میک اپ نہیں کرتی ان کا چہرہ جیسا پہلے تھا ویسا بعد میں بھی رہتا ہے۔ میں پوچھنا چاہوں گی اپنی بہنوں سے کہ پہلے کی عورتیں جب میک اپ نہیں ہوا کرتا تھا اور وہ میک اپ نہیں لگایا کرتی تھی تو کیا وہ خوبصورت نہیں دکھتی تھی؟ کیا وہ اچھی نہیں لگتی تھی؟ کیا وہ خوبصورت ہوتی نہیں تھی؟ بلکہ وہ تو آج کی عورتوں سے بھی زیادہ خوبصورت ہوتی تھی، کیونکہ پہلے کی عورتیں اگر ان کے چہرے پر پسینہ ہو جایا کرتا اور وہ اس پسینے کو رومال سے یا اپنے دوپٹے سے پوچھ لیتی تو ان کا چہرہ دوبارہ کھلا کھلا معلوم ہونے لگتا۔ لیکن آج تو حال یہ ہے کہ اگر چہرے پر پسینہ ہو جائے اور اس پسینے کو پوچھ لیا جائے تو عورت بھوت سے کم دیکھنے میں نہیں لگتی، اس کا سارا میک اپ اتر جاتا ہے۔ آج ایک اور بلا جو سارے عالم میں پھیلتی چلی جا رہی ہے وہ لپسٹک ہے۔ میں اپنی بہنوں سے پوچھنا چاہوں گی کہ لپسٹک لگانا جائز ہے کہ نہیں؟
लिपस्टिक लगाना तो हराम है, क्योंकि इसमें सूअर की चर्बी मिली होती है। और ये बात मैं अंदाजन नहीं कह रही, बल्कि ये बात बहुत सारी किताबों में लिखी हुई है और बड़े बड़े उलमा ने ये जिक्र किया है कि लिपस्टिक लगाना हराम है, क्योंकि इसमें सूअर की चर्बी होती है। आज मेरी बहन अगर किसी सूअर की तरफ देख लेती है तो अपना मुंह बिगाड़ती है, जैसे कि उसके मुंह में कोई कड़वी चीज निचोड़ दी गई हो। लेकिन जरा गौर तो करें कि जब वही उसी सूअर की चर्बी से वो लिपस्टिक बनता है और उस लिपस्टिक को अपने होंठों में लगाती हैं, और उस होंठ में लिपस्टिक लगाने के बाद वो खाना खाती हैं, खाना खाने के साथ पानी पीती हैं, और उस खाने और पानी के साथ वो लिपस्टिक आपके पेट में चला जाता है, तो गोया कि आपने सूअर की चर्बी खाई और वो चर्बी आपके पेट में रहता है, और जिसकी वजह से आप जब अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं तो वो उस बच्चे पर भी उसका असर पड़ता है। तो फिर आपका बच्चा नेक और सालिह कैसे बनेगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मेकअप करने से, सिंगार करने से मना नहीं किया कि सिंगार तो औरतों के लिए ही है, लेकिन उसके कुछ हुदूद हैं। सिंगार अगर औरतें करें तो अपने शौहर के लिए करें, क्योंकि ये बस शौहर के लिए ही जायज करार दिया गया है। लेकिन आज तो मामला बिल्कुल उल्टा है, औरतें शौहर के लिए मेकअप नहीं करती, शौहर के लिए सिंगार नहीं करती। बाजार जाना हो तो सिंगार करती हैं, फिल्म देखने जाना हो तो सिंगार करती हैं, वलीमे में जाना हो तो सिंगार करती हैं, शादी की दावत में जाना हो तो सिंगार करती हैं। कल तो घर में सिंगार करके घर से निकला करती थी, लेकिन इस्लाम ने इसकी भी इजाजत नहीं दी थी। लेकिन आज तो माहौल ऐसा हो गया है कि सिंगार करने के लिए घर से बाहर जाती हैं। अल्लाहु अकबर। कर की औरतों में तो थोड़ी मोड़ी गैरत बची भी थी, लेकिन आज की औरतें गैरत इस कदर खो बैठी हैं कि मेकअप करने के लिए, सिंगार करने के लिए घरों से बाहर निकलती हैं, और वो भी सिंगार करवाती हैं अजनबी औरतों से करवाती हैं। और इतने पर ही बस नहीं होता, बल्कि गैर महरम मर्दों से वो सिंगार करवाती हैं, अपने बालों को कटवाती हैं, अपने होठों में लिपस्टिक लगवाती हैं, अपने गालों में पाउडर लगवाती हैं। ऐ खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कनीजों, हदीस पाक में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मैंने दोज़ख का मुशाहिदा किया तो औरतों को मैंने देखा कि उनकी चीखें निकल रही हैं। एक गड्ढे में मैंने औरतों को देखा कि वो इतने दर्दनाक अंदाज में चीख रही हैं कि कलेजा मुंह को आ रहा है। मैंने हजरत जिब्राइल से पूछा कि ऐ जिब्राइल, ये कौन औरतें हैं जो इस तरह से चीख रही हैं? तो हजरत जिब्राइल अमीर इरशाद फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत की वो औरतें हैं कि जो मेकअप किया करती थी और जो अपने होठों में लिपस्टिक लगाया करती थी, जो नाजायज तौर पर मेकअप किया करती थी, ऐसी चीजों से अपने आप को संवारती थी जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने हराम करार दिया है। ऐ सैयदा फातिमा की कनीजों, घंटे 2 घंटे के हुस्न के लिए, किसी की तारीफ लूटने के लिए मेकअप लगाती हो, वलीमे में जाती हो। अगर वहाँ कोई तुम्हें देखकर तुम्हारी तारीफ कर दे, अगर कोई तुम्हें देखकर कहे कि अरे वाह, तू तो फला हीरोइन की तरह लग रही है, तब तो तुम खुशी से फूले नहीं समाती। तुम तो ये कहती हो कि इसने तो मेरी तारीफ की इंतहा कर दी कि मुझे फला हीरोइन से तस्बीह दे दी। लेकिन मेरे नजदीक आज के दौर में अगर कोई गाली सबसे बड़ी है तो वो किसी को हीरोइन कहना है, क्योंकि हीरोइन जिनाकार भी होती है, हीरोइन जिस्म फरोश भी होती है, हीरोइन नाचने वाली होती है, हीरोइन झूठी होती है, हर तरह की बुराई हीरोइन के अंदर होती है। लेकिन तुम्हें ये लक़ब बड़ा अच्छा मालूम होता है, और अगर तुम्हें कोई कहे कि तुम हीरोइन की तरह दिख रही हो तब तो तुम बहुत खुश होती हो। लेकिन अगर इसके बजाय कोई तुम्हें कहे कि तुम फाहिशा हो, तुम जानिया हो, तुम जिस्म फरोश हो, तो तुम लड़ने मरने पर उतर आती हो। और जरा गौर करे तो मालूम होगा कि जो हीरोइन होती है वो जिना भी करती है, वो अपने जिस्म का सौदा भी करती है, वो नाचती भी है, वो गाती भी है। और अगर उसको किसी औरत को हीरोइन कहा जाए तो वो खुश होती है, लेकिन अगर सीधे मुंह पर जानिया कह दिया जाए तो लड़ने मरने पर उतर आती है। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, हीरोइन तो जानिया है, हीरोइन तो शराबिया है, हीरोइन तो जिस्म फरोश है, हीरोइन तो नाचने वाली है। बल्कि मेरे नजदीक फाहिशा जितनी बुरी नहीं होती, बल्कि मेरे नजदीक फाहिशा उतनी बुरी नहीं जितनी बुरी हीरोइन है। क्योंकि फाहिशा जब जिना करवाती है तो कमरे के अंदर करवाती है, लेकिन हीरोइन तो सरे बाजार करवाती है, उसका पोस्टर लगता है, फिल्में बनती हैं जिसको लोग बड़े मजे ले लेकर देखते हैं। और एक बात और याद रखिए, सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर किसी ने कोई बुराई ईजाद की,
अगर किसी ने कोई बुराई इजाद की और वो बुराई चलती रही, जब तक वो बुराई चलेगी तब तक उस शुरुआत करने वाले को उस बुराई की सजा मिलती रहेगी। तो जरा गौर करें कि जो हीरोइन फिल्में बनाती हैं वो भी तो बुराई इजाद कर रही हैं। जब तक वो फिल्में देखी जाएंगी, जब तक उन फिल्मों का नाम बाकी रहेगा, तब तक अगर वो औरत मर गई होगी तो उसके कब्र में उसे अजाब दिया जाएगा। मैं पूछना चाहूंगी कि इतनी बदतरीन औरत का टाइटल लेकर तुम खुश होती हो? अरे तुम्हें तो करना ये चाहिए था कि तुम जब घर से निकलती और किसी के यहाँ वलीमे में जाती या किसी के यहाँ किसी काम से तुम्हें जाना होता तो देखने वाला तुम्हें देखकर कहता, अरे तू तो सैयदा फातिमा की कनीज मालूम होती है, अरे तू तो आयशा की चाहने वाली मालूम होती है, अरे तू तो सैयदा फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर की कनीज मालूम होती है, तू तो हजरत खदीजतुल कुबरा की कनीज मालूम होती है। लेकिन अफसोस की बात है, आज सोच बदल गई है, आज औरतों की फिक्र बदल गई है, आज माहौल बदल गया है। जब दो जुमलों का खिराज हासिल करने के बदले में तुम्हें इतने दर्दनाक अजाब में मुब्तला किया जा रहा है, तो फिर जरा सोचो उस हीरोइन का क्या अंजाम होगा जो दिन रात इसी तरह बनती संवरती रहती है और गैर महरम मर्दों से अपना ताल्लुक बनाया करती है। हदीस पाक में आता है कि जब कोई औरत बन संवर कर अपने घर से निकलती है और इस नीयत से निकलती है कि कोई मर्द उसे देखे और उसके फितने में मुब्तला हो, तो ऐसी औरत के जिस्म को ऐसी औरत के जिस्म की चमड़ी को आग की कैंची से काटा जाएगा। अरे औरतें तो सिनफे नाजुक हुआ करती हैं, औरतें तो सुई का चुभना भी बर्दाश्त नहीं कर पाती, औरतें तो मोमबत्ती से हाथ जल जाए तो उस पर रोने लगती हैं। तो जरा गौर करें, जरा सोचें कि जहन्नम में जब उनके जिस्म की चमड़ी को आग की कैंची से काटा जाएगा, कैंची वो भी आग की और वो भी जहन्नम की बनी हुई, तो फिर उस दर्द का क्या आलम होगा। मेरी बहनों जरा गौर करिए, दुनिया का कोई भी इंसान ऐसा नहीं जो मेरे अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त कर सके। तो अपने लिए हमने जो गुनाहों का समंदर बना रखा है, जरा उन गुनाहों के बारे में सोचें कि उनका अंजाम क्या होगा। उन गुनाहों के बदले में जब हमें अल्लाह तबारक व तआला, जब उन औरतों को अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम में डालेगा और उनके बदन को आग की कैंची से काटा जाएगा, तो फिर उस दर्द का क्या अंजाम होगा। तो फिर उस दर्द का अंदाजा लगाइए कि कैसे उस दर्द को बर्दाश्त किया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, इन्नल फुज्जारा लफी जहीम, फाजिर गुनहगार बेशक वो जहन्नम में है। गुनहगार के लिए जहन्नम को बनाया गया और नेकोकार के लिए जन्नत को बनाया गया। तो मैं अपनी बहनों से कहूंगी कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तौबा करें कि आज के बाद से इंशाअल्लाह अज़ीज हर नाजायज तरह के जो सिंगार हैं उनसे हम बचने की कोशिश करेंगे, और अगर सिंगार करेंगे भी तो अपने शौहर के लिए करेंगे। और अगर शौहर नहीं है, अगर किसी औरत की शादी नहीं हुई है, तो वो अगर सिंगार करती भी है तो वो जायज़ तौर पर सिंगार करे और वो अपने घर के अंदर ही रहे। घर के बाहर जाए तो सिंगार करके ना जाए, बल्कि घर के बाहर जाए तो सैयदा फातिमा की तरह हया की चादर में लिपटे हुए बाहर निकले, ताकि देखने वाला देखकर कहे, अरे देखो देखो वो तो सैयदा फातिमा की कनीज मालूम।